When a girl decides to get sexually active, क्या measures लेने चाहिए? तो सबसे पहली चीज इज कि नो द पर्सन जिसके साथ आप करने जा रहे हो, बिकॉज अनसेफ सेक्स can lead to sexually transmitted diseases. You can have problems like pelvic inflammatory disease हो गई, private parts में infections हो गए, आपको infertility हो सकती है, and then there's that big fear of AIDS. Is taking pills safe? नहीं, अगर एक लड़की पिल्स लेती है, अग्रीड वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो हो ही जाएंगे ना उसको. पिल्स देखिए, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स. ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उससे, लेग्स में क्लॉटिंग हो सकती है उससे, दे कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कैंसर्स. Why are females so scared of gynecologist? ये इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये सेक्सुअल हेल्थ की बात करी ही नहीं जाती है. अधिकतर बस ऐसे वैसे इधर उधर से या पॉर्न मैगजीन से या ऐसी तरह से ही सीखते हैं. लड़कियों को यूजुअली पता भी नहीं रहता है, लगता है कि पता नहीं गायनेकोलॉजिस्ट क्या हमारे अंदर देख लेगी जिससे हमें शर्म आएगी बाद में. If a couple conceive नहीं कर पा रहे हैं तो कितने समय बाद उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? 1 year of unprotected intercourse, they should contact a gynecologist. There's a term called DINK, double income, no kids. All a gynecologist can say is that there cannot be a reversing of your clock. After the age of 38 years, eggs slowly begin to diminish. All the eggs which a girl has have been inside her from the time she was herself a fetus in her mother's womb. As you grow older, the eggs are also growing older. So after some time, the eggs are no longer effective. And what about egg freezing? Egg freezing has still not given very good results. If somebody denies to use a condom, then what should be her next step? All right, everybody, welcome to India's first magical podcast, Hocus Pocus with Anshul. And आज की conversation के लिए I am excited beyond words because आज हमने इतने important topics पे इतनी simple, सरल भाषा में layer by layer discuss किया है. Please welcome our very special guest, India's leading gynecologist and obstetrician, Dr. Anita Jain. She is the most reputed doctor and expert in her field. She has an experience of more than 35 years. She is basically a practicing doctor in Max Vishali and in Pushpanjali Medical Center, Delhi. She also has her separate clinic in Ghaziabad, Surinagar. And the best thing about her is her ability to make these issues simple. And she's an expert in high-risk pregnancies. Well, everybody, आज की conversation में हमने बात की है safe sex, pregnancies, periods and बहुत सारे issues की, बहुत सारे inhibitions की. तो ये एक completely female oriented podcast hai, but if you are a man who's watching this and listening to this, I request and urge you to share it with a female in your life, with your mother, your sister and your partner. I will now let you soak in the entire conversation. Please put your earplugs together for an extremely insightful episode. वेलकम इन होकस फोकस मैम. थैंक यू. कैसे हो आप? आई एम रियली गुड. मैं जानती हूँ आज की जो बातें होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई एम कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम सारे डाउट्स एंड फीमेल्स की इनहिबिशंस को क्लियर कर पाए. मैम, यू आर एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड अ गायनोकोलॉजिस्ट. यस. तो अगर आप सिंपल सरल भाषा में हमें समझा सको कि दोनों में अंतर क्या होता है. देखिए, हमारे सब्जेक्ट का नाम है ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी. ओके. Gynecology as such deals with women altogether. Yeah, the word gyne means dealing with women and logos means the study of that. So gynecology means the study of things related to women. ठीक है. And obstetrics is all things related to pregnancy and childbirth. Okay. So that is a separate, that is only for women who are already pregnant and or who is going for a delivery. So that is the difference between the two. Got it. तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम डिफरेंट फेजेस ऑफ वुमेन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर पाए. नॉट जस्ट प्रेगनेंसी, राइट फ्रॉम अडोलेसेंस टू प्रेगनेंसी टू मेनोपॉज टू लाइक ऑल सेक्सुअल वेलनेस स्पेस, हम वो सारे डिस्कस कर पाए. ओके. एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, कीपिंग इन माइंड अडोलेसेंस, सबको वैसे सब कुछ पता है, बट फिर भी अगर आपको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना हो कि पीरियड्स क्या होते हैं. पीरियड्स जिनको हम मेंसेस भी कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स भी कहते हैं, मासिक भी कहते हैं,
माहवारी भी कहते हैं. हम्म. This is a periodic monthly episode of bleeding from the uterus, Mhm. which happens to people from the time they become adolescents to the time when that girl becomes a woman and then she achieves menopause. Hmm. See, God made men and women different so that they could produce children. ठीक है. So every month, the uterus begins to prepare a bed for a child. ठीक है. So it prepares nutrition also for the child. Now, the nutrition for a child, for a embryo, will only be blood. Okay. So it's as if the uterus prepares a bed of blood Oh, okay. for the baby, in which if there was an implantation, if an embryo were to come and attach itself to the inside of the uterus, then it would feed on that. But if there is no embryo and there is no pregnancy, so the uterus gives up, and that whatever blood had been collected, that gets shed off. Okay? And then the cycle begins every month. So I mean, in a way, you can say that a menses is the uterus crying because it could not conceive that month. उसके खून के आंसू हैं. That's all it is. खून के आंसू मतलब गेस्ट के लिए बेड बिछा के रखा था और गेस्ट नहीं आए. गेस्ट आया नहीं तो कब तक इंतजार करेंगे ना, फिर वो बेड पुराना हो जाएगा. तो therefore you shed that and begin preparing again next month. So generally this happens in 28 days for most girls, but anything between 30 weeks plus minus 3 days, 5 days is okay. So anything from 25 to 35 days is taken as a normal cycle. So that is what menses is all about. Are painful periods normal? देखिए अगर पेन की बात जहाँ तक है, वहाँ तक पेन मेंसेस के समय किसी को पेन होता है, किसी को केवल डिस्कम्फर्ट होता है. बिकॉज ब्लड के साथ साथ यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है ना, जो उसने बेड प्रिपेयर किया हुआ है फॉर द बेबी, वो पूरे का पूरा शेड होता है. ओके. तो उसको बाहर निकालने के लिए यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है. और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है ऐसे करके, तो उससे पेन होता है. मतलब कोई चीज़ में भी अगर मरोड़ होगी तो आपको दर्द होगा. तो वही होता है यूट्रस में भी. अब कुछ लोग उसको परसीव करते हैं एज माइल्ड डिस्कम्फर्ट, ना कि थोड़ा बहुत दर्द है, जिससे उनको पता चल जाता है कि हमारा मेंसेस होने वाला है. बट कुछ लड़कियों को, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस होता है ये पेन. तब वो लोग कहते हैं कि हमारे बहुत पेनफुल है मेंसेस. सो दिस इज़ नॉर्मल. हाँ, बट कभी कभी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता है. देन वी बिगिन टू थिंक कि कहीं कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है इसको. So a very painful menses can be a sign of some other diseases also. हम उस पेन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा पेन अनबेरेबल है और अब हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए हर लड़की को पता है कि इतना मुझे पेन हर महीने होता है ना, तो वो उसके लिए नॉर्मल बन जाता है. बट अगर किसी महीने उससे भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है ना, तब उसको अपने को दिखा लेना चाहिए. अधिकतर लड़कियां जानी जाती हैं कि इतना पेन हमें होता है. इनफैक्ट बहुत लड़कियों को ये भी पता रहता है कि अगर हम ये दवा खा लेंगे तो हमारा पेन ठीक हो जाएगा, और वो उनके लिए नॉर्मल होता है एंड उसमें कुछ गलत भी नहीं है. परंतु अगर उससे भी ज़्यादा उसको दर्द हो रहा है, तब उसको जाना चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट को. तो पीरियड्स में मेडिसिन लेना इज़ नॉर्मल? हाँ, बिल्कुल ठीक है. माइल्ड मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है. गॉट दैट. अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हैं तो उसके बाद कौन कौन सी कंडीशंस या डिजीज़ेस वहाँ से ओरिजिन हो सकती हैं? देखिए, पेन एज सच से तो कोई डिजीज़ नहीं होगी, बट पेन से ये पता लग सकता है हमें कि हाँ, इसको कोई प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल नहीं है. तो ऐसे देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि अगर आपको पेल्विक इन्फेक्शंस हो रहे हों ना, तभी भी बहुत पेनफुल मेंसेस होता है. अगर यूट्रस या उसके आसपास इन्फेक्शन हो जाए तो उससे काफ़ी दर्द होता है. देन थोड़ी और ज़्यादा उम्र जैसे 30s में आ जाती हैं लड़कियां, उसके बाद दे आर सर्टन कंडीशन कॉल्ड फाइब्रॉइड यूट्रस, जिसमें यूट्रस में छोटी छोटी गांठें हो सकती हैं. तो उसके वजह से भी पीरियड्स के समय उनको दर्द रहता है. देन एक कंडीशन होती है जिसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. उसमें भी उसका पहला लक्षण होता है बहुत ज़्यादा दर्द होना. मतलब इन सब चीज़ों का पहला सिम्टम है दर्द होना. तो इस तरह से जब ऐसी चीज़ें इतना दर्द होके
जब लड़कियां आती हैं हमारे पास ना, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि शुरू में ही अब मैं अधिकतर लड़कियों को इतना ज़्यादा बताना नहीं चाहती। मैं इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि थोड़े से भी दर्द में वो फिर इमेजिन करने लगती हैं कि हमको ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, जबकि 99% लड़कियों को कुछ भी नहीं हुआ रहता है ना, क्योंकि इनिशियली यूट्रस का मुंह जो होता है जिसमें से ब्लड निकलना है, वो मुंह बहुत ही छोटा होता है, एक सुई की नोक के बराबर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा भी मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का तो पेन होता है उसमें, बट जैसे जैसे समय बीतता है ना, एक बच्चा हो जाता है मान लीजिए, या मिसकैरेज हो गया या कुछ भी हो गया, तो धीरे धीरे बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल जाता है, और ऐसे भी समय के संग भी वो खुल जाता है, तो उसके बाद फिर पेन अपने आप से धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन आजकल बच्चे अपने माँ बाप से कुछ नहीं पूछते हैं, वो सीधे या तो अपने फ्रेंड से पूछेंगे, और फ्रेंड भी क्या बताएगी, वो कहेगी चलो नेट पे देखते हैं ना। तो जो साइट्स उनको पता है, जो इजीली अवेलेबल है, उसमें यूजुअली नॉनसेंस रहता है ना, एंड बच्चे बस डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। तो इससे टू मच नॉलेज भी अच्छी चीज़ नहीं है ना। बट जब आप बता रहे हो तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब 20s पार हो जाते हैं, 30s में आने लगते हैं लोग, और तभी भी अगर मेंसेस का पेन ठीक नहीं हुआ, तब ये सब चीज़ें सोचना चाहिए कि हाँ, फाइब्रॉइड भी हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है ना, एंड इन्फेक्शंस तो खैर किसी भी एज पे हो सकते हैं ना। सो दिस इज़ व्हाट वी थिंक ऑफ। टू मच नॉलेज अच्छी नहीं है, ऑल्सो नॉलेज फ्रॉम द अनरिलायबल सोर्स भी अच्छी नहीं है। दैट इज़ वाई माई इंटेंशन बिहाइंड दिस होल कॉन्वर्सेशन इज कि सही बात हो, आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर हों, एंड फ्रॉम द राइट सोर्स। यस। बट जैसे आपने बात की, लोग क्यों डरते हैं? वाई आर फीमेल्स सो स्केर्ड ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट? देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मतलब आई थिंक लेडीज़ तो नहीं डरती, बट हाँ, लड़कियां डरती ज़रूर हैं, बिकॉज हमारे घरों में, परिवारों में, और ये इंडिया में ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये सेक्सुअल हेल्थ की बात करी ही नहीं जाती है, ना ही जेनाइटल्स की बात करी जाती है, जो गुप्तांग होते हैं, चाहे लड़कियों के हों चाहे लड़कों के हों, इनकी बात ही नहीं होती है ना। तो लोग अधिकतर बस ऐसे वैसे इधर उधर से या मतलब पॉर्न मैगजीन से या ऐसी तरह से ही सीखते हैं, क्योंकि और कोई मैगजीन अवेलेबल ही नहीं है ना। इसलिए लड़कियों को यूजुअली पता भी नहीं रहता है कि गायनेकोलॉजिस्ट क्या देखेगी, क्या करेगी। उनको ये नहीं पता कि हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हाइजीन हमने ठीक से मेंटेन करी है कि नहीं। तो उनको लगता है कि पता नहीं गायनेकोलॉजिस्ट क्या हमारे अंदर देख लेगी जिससे हमें शर्म आएगी बाद में, इसलिए वो जाना नहीं चाहती हैं ना, क्योंकि वो सोचती हैं पता नहीं हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बॉडी क्लीन करके जाना चाहिए, क्या हमें कुछ और करके जाना चाहिए ना। तो उनको पता नहीं रहता है, इसलिए डरती हैं। तो आप इस टैबू को क्लियर करने के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे टू ऑल दीज फीमेल्स जिनके अंदर थोड़ी बहुत इनहिबिशन है, जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ प्रॉब्लम है और वो विजिट करना चाह रही हैं बट नहीं कर पा रही? हाँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप विज़िट कर लें एक गायनेकोलॉजिस्ट को, क्योंकि आपको बहुत सारी बातें जिससे आप डर रहे थे, जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं था, वो आपको पता चल जाएंगी, और आपकी जो एटलीस्ट बीमारी ठीक हो या ना हो, डर आपका ठीक हो जाएगा, है ना। जो आप इमेजिन कर रहे थे कि पता नहीं क्या क्या हो सकता है, वो लिमिट हो जाएगा कि तुम्हें ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं बस, और हो सकता है कुछ हो ना सकता है हो। कुछ भी ना हो। पर एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बोलनी है कि डॉक्टर पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, वो भी एक रीज़न होता है फीमेल्स के अंदर कि वो डॉक्टर किसी और के साथ डिस्कस ना कर ले, हमारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर ले, मेरे पति के साथ डिस्कस ना कर ले। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर्स किसी से भी डिस्कस नहीं करते, इतना भी नहीं बताते हैं कि वाइफ ने क्या कहा, ये भी नहीं कहते हस्बैंड ने क्या बताया, वो भी नहीं कहते। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझते हैं ना। केवल तभी ऐसी बात कही जाएगी अगर कुछ आपकी लाइफ एट डेंजर है ना, तब बोली जाएगी, वरना कुछ भी नहीं बोलता है कोई। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें पता है कि वो लड़की हमसे घबरा रही है, अब मैं उसकी बात कह दूंगी तो अगली बार तो वो मेरे पास नहीं आएगी ना। तो इट इज़ मच बेटर कि मैं उसकी ज़िंदगी में अपने को एक जगह दूं जिसमें मैं उसको हेल्प कर सकूं, वो अगली बार भी आ सकेगी मेरे पास। ऐसा आपके साथ बहुत होता होगा ना कि क्योंकि आपका एक बहुत ही इंटीमेट टॉपिक है, तो सिर्फ आप ऑर्गन्स के साथ डील नहीं कर रहे हो, आप माइंडसेट के साथ भी डील कर रहे हो, आप एक काउंसलर का भी रूप ले लेते हो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। यस। मुझे ये सवाल पूछना था कि देयर इज़ लॉट ऑफ हार्मोनल रोलर कोस्टर दैट गोज इनसाइड अ वुमन व्हेन शी इज़ गोइंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन, वो उसके साथ डील करने का क्या बेहतर तरीका है?
Are you talking about PMS? Yes. Yes. So that is called a premenstrual syndrome. And आजकल मतलब it's very common. And lots of women do suffer from it. Yes. ना उसमें क्या होता है, उस समय हॉर्मोन्स के लेवल्स जो होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, बिकॉज जस्ट बिफोर, जैसे मैंने बताया था ना, व्हेन द यूट्रस गिव्स अप ऑन अ प्रेगनेंसी फॉर दैट मंथ, Yes. उसके पहले तक उसने खूब ईस्ट्रोजन बढ़ाया होता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाया होता है, तो एक हाई हो रहा होता है एक तरह से वुमेन के लिए. एंड अचानक से देन डिसाइड किया अब गिव अप हो गया, तो वो हार्मोन लेवल्स एकदम से नीचे आ जाते हैं. उसके वजह से एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है अंदर, चिड़चिड़ाहट. एक चिड़चिड़ाहट, यस, एक फ्रस्ट्रेशन, कुछ चिड़चिड़ाहट आएगी. कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं. आई मीन उनको पता ही नहीं वो क्यों दुखी हैं, है ना, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में हो रही हैं. बट एक्चुअली जो हमारे मूड्स होते हैं ये सब हमारी हॉर्मोन्स की ही तो देन है ना. तो बिकॉज ऑफ दिस वैक्सिंग एंड वेनिंग ना, घटना बढ़ता होता है जो हॉर्मोन्स का, इसके वजह से थोड़ी इमोशनल फीलिंग्स की ना धज्जियाँ उड़ जाती हैं. तो बहुत लोग होते हैं उसको मेंटेन कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं. ऐसे भी देखा गया है कि जो बिजी हैं, है ना, वो सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं. True. हाँ, और जिनके पास टाइम है या ज़्यादा पूछने वाले हैं उनको वो लोग जो होते हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है. प्लस पीपल जो ऑलरेडी एंग्जाइटी या डिप्रेशन या ऐसी ज़िंदगी के फेजेस से गुजर रहे हैं, उनको ये प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम ज़्यादा होता है. हाँ. Basically, this question and this answer is for the men watching this podcast, because as females we know that PMS is a real thing. Yes, but it is definitely a real thing. मतलब ऐसा नहीं है कि लोग यूं ही कह रहे हैं और आप उस मजाक बना दो उस लड़की का, ऐसे नहीं होता है. बट अगेन लड़कियों के संग भी मैं ये कहूँगी कि अगर आप अपने को बिजी रखोगे ना, तो आपको कम ये फीलिंग इसकी महसूस होगी, क्योंकि होना तो है ही वो. हर बार हर महीने पीरियड तो आपका आना ही है ना. तो आप अगर मतलब पहले से ही डरने लग जाओगे कि देखो अब आने वाला है, अब आने वाला है, अब आने वाला है, तो वो आएगा, है ना. और आपको ऐसे ही लगेगा चिड़चिड़ाहट, दुखी होना, रोना, बात नहीं करना किसी से ना, ये सब हो जाता है. प्लस थोड़ा पेन किलर्स ले लो अगर आपको पेन भी हो रहा है साथ में ना, या फिर अगेन थोड़ा सॉल्ट अपना रिस्ट्रिक्ट कर लें अगर ना, उससे भी फ़र्क पड़ता है. सेकेंड थिंग, कैफ़ीन ज़्यादा ना लें, लाइक टी कॉफ़ी उस समय कम कर दें, तो भी आपको आराम मिलेगा. been there, done that. मैं ये कहूँगी कि आई ऑलमोस्ट अग्री विद वॉट यू आर सेइंग, क्योंकि जब आप बिज़ी होते हो, जब आपके पास एक वर्क प्रोजेक्ट है, मेरे साथ ऐसा था, जब मेरे पास शोज़ होते हैं या मेरे पास शूटिंग स्केड्यूल्स हैं, तब जिस दिन पीरियड्स होगा उस दिन पता भी नहीं चलेगा, और जिस दिन नॉर्मल दिन जा रहा है उस दिन वो हर चीज़ फील होती है. सो आई कैन कोरिलेट टू दैट. सो व्हाट इज़ PCOS? PCOS जो है वो एक हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम है, ठीक है. और PCOS आजकल आई थिंक 1/3 ऑफ द गर्ल्स को तो हो ही रहा है. और ये बहुत कॉमन है. देखिए PCOS जो है इसकी ये जेनेटिक होता है ना, 70 to 80% केसेस ये जेनेटिक होता है. इसका कुछ रिलेशनशिप डायबिटीज़ से है. ओके. हाँ, तो देयरफॉर आप लड़कियों को देखेंगे अगर आप जब उनकी हम हिस्ट्री लेते हैं, तो कोई ना कोई उनकी फैमिली में ऐसा है जिसको डायबिटीज़ है, और उसका ये एक साइड इफ़ेक्ट है, एक मैनिफेस्टेशन है ऑफ डायबिटीज़. तो ये दिस डिजीज़ इट मेक्स अ पर्सन मोर प्रोन टू डायबिटीज़ ऑल्सो. होता क्या है इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं उनका एक बहुत डेलिकेट बैलेंस होता है बिटवीन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. देयर अगेन बिटवीन मेल हार्मोन्स एंड फीमेल हार्मोन्स. फीमेल हार्मोन इज फीमेल हार्मोन्स आर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एंड मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन. तो इसमें क्या होता है कि इनके जो सिग्नल्स होते हैं ना वो गलत हो जाते हैं सब, क्योंकि इनिशियल फेज में पर्सन ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. देन क्या होता है, बहुत सारे एग्स जो होते हैं दे बिगिन टू मैच्योर इन दी. अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं इसका. बिल्कुल बिल्कुल. हम एक मॉडल लाए हैं फीमेल्स के गुप्तांगों का या जेनाइटल ऑर्गन्स का. तो ये यूट्रस है, देखिए ये यूट्रस है, ये माउथ ऑफ द यूट्रस है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं. ठीक है. ठीक है. ये विजाइना है.
एंड ये जो ओपनिंग आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द विजाइना थ्रू विच इंटरकॉर्स हैपेंस. ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो, द विजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्थ कैनाल. इसी के थ्रू बेबी बॉर्न होता है. Okay, so this entire thing is vagina? Yeah, this tube. And Generally, this is the front is the part. opening. This is the opening part. हाँ, ये vagina नहीं है. This is called the vulva. vulva. हाँ, the outside part is called the vulva and this is the vagina. This is the cervix and this is the uterus. अब uterus से दो tubes निकलते हैं. देखिए ये tube है एक ये tube है. And these are the two ovaries which are the egg baskets. Okay. So every month what happens is that पहले इसमें every month पहले ओवरी अपना काम शुरू करता है. द ब्रेन सेंड सर्टन सिग्नल्स भेजता है टू द ओवरी एंड उससे क्या होता है कि ओवरी में एग बनना शुरू होता है. अब जैसे हाँ पहले इसमें एग बना, मान लीजिए मिडल ऑफ द साइकिल में एक एग रिलीज हो जाता है. ये देखिए ये ओवरी बाहर से ऐसे लगती है, बट अगर हम इसको कट कर दें तो ये ऐसे लगती है. अच्छा. ठीक है, तो इन द मिडल ऑफ द साइकिल से अबाउट डे 15 पे 14 पे ना एक एग रिलीज होता है. इसमें से एग बाहर निकलता है और वो एक महीने एक तरफ निकलता है, एक महीने दूसरे महीने में दूसरी वाली ओवरी से निकलता है. यूजुअली, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, बट यूजुअली ऐसे होता है. अब ये इसमें चला गया, ये एग अब रिवर्स चलता है टुवर्ड्स द यूट्रस. ओके. और उन दिनों में अगर इंटरकॉर्स होगा तो सपोज द हस्बैंड ने यहाँ पे सीमन छोड़ दिया, द सीमन हैज़ टू क्लाइंब अप बाय इटसेल्फ एंड द स्पर्म्स विल गो अप एंड दे विल गो इनटू दिस ट्यूब एंड दे विल गो इनटू दिस ट्यूब. नाउ इफ दे मीट एन एग हियर तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है. सो फर्टिलाइजेशन ऑलवेज हैपन्स इन द ट्यूब्स. ओके. एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज्ड एग इट कम्स बैक इनटू द यूट्रस एंड इफ कंडीशंस आर फेवरेबल वो इम्प्लांट कर जाएगा और वो यहाँ पे अब चिपक गया. अब ये प्रेगनेंसी हो गई है. नाउ इट विल ग्रो फॉर 9 months, इट विल ग्रो एंड देन इट विल डिलीवर एज अ बेबी. ओके. ठीक है, बट अगर मान लीजिए यहाँ पे एग नहीं आया, हाँ, या उस समय इंटरकॉर्स नहीं हुआ ना, तो कुछ भी नहीं हुआ. अब ये वेट करता रहा तो ऑल टुगेदर 14 days तक तो प्रेपरेशन होती रहती है. उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन होता है. देन द फर्टिलाइज्ड एग कम्स इनटू द यूट्रस एंड इट इम्प्लांट्स. 7 days का टाइम उसको देते हैं कि भाई चलो डे 21 पे नहीं आया तो 22 पे आ जाएगा, 23 पे आ जाएगा. बट अगर 28 तक भी नहीं आया तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है. Got that. एंड देन अ न्यू एग बिगिंस टू फॉर्म इन दिस ओवरी. ओके. समझे? बिल्कुल. तो दिस इज द प्रोसेस इन अ नॉर्मल मेंसेस. एक चीज पूछ सकती हूँ मैं आपसे? हाँ. जैसे कि यहाँ पे ओवरी ने एग रिलीज किया और इस ट्यूब में है, इंटरकोर्स हुआ, सीमेन यहाँ से यहाँ चला गया, दोनों तरफ जाएगा वो. दोनों तरफ ही हाँ, जाएगा. हाँ. अच्छा. वो दोनों तरफ जाएगा. इक्वली डिवाइड. या ओके. गॉट दैट. आपने ना वैसे एक्सप्लेन किया है जैसे चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन में एक्सप्लेन होना चाहिए था. और मैं सच बोल रही हूँ, इतना बड़े होने के बावजूद भी अभी तक ये नॉलेज नहीं थी इतनी क्लैरिटी से. अगर हमको ये सही सोर्स से पता लग जाएगा ना तो हम सर्च नहीं करेंगे और हम इधर उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन ऑर्गन्स है. जस्ट बिकॉज वो सेक्स ऑर्गन्स है उसको छुपाया जाता है. ना कहीं पिक्चर मिलती है, ना कहीं कोई बताता है, कोई कुछ नहीं. अभी सारे टेक्निकल पार्ट आपने समझा दिए, बात खत्म. और इसमें कुछ ऐसा, क्योंकि नो मिस्ट्री देन, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट देन, नथिंग टू गेट शाई अबाउट. It's just something which nature has made. Yes. So now this is a diagram of that same ovary in a magnified form. तो अब इसमें क्या होता है कि जब आपका जिस दिन मेंसेस शुरू हो जाता है उस दिन से ही ओवरी शुरू कर देती है अपनी दूसरे मंथ की प्रेपरेशन. तो जब यूट्रस में ब्लीडिंग हो रही है उस समय ओवरी में अगेन नेक्स्ट साइकिल की प्रेपरेशन हो गई. ठीक है. तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि जितने भी एग्स एक लेडी को अपनी लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करने हैं सब उसके ओवरी में तब से रहते हैं जब वो खुद ही अपनी मदर के पेट में थी. सच में? यस. कोई नई एग्स कभी नहीं बनते, वो पुराने एग्स ही हमेशा रहते हैं. तो हर महीने करीब 10 से 15 एग्स ये जो होते हैं ये शुरू हो जाते हैं मैच्योर करना. अब ये मैच्योर होने का इनका प्रोसेस ये होता है कि एग के राउंड जो एक झिल्ली के अंदर वो एग रहता है उसके अंदर पानी भरने लग जाता है. उसको कहते हैं फॉलिकल. इट्स लाइक एक पिचका हुआ बलून जो है उसको फुला रहे हैं पानी से. अच्छा. हाँ, तो वो बड़ा होता रहता है. फिर अराउंड डे 11, 12, 13, 14 पे
इतना बड़ा हो जाता है कि ये फट जाता है। इतना जैसे बलून को आप बहुत फुला दोगे तो फट जाएगा, तो फट जाता है और ये एग बाहर निकल गया। देखिए ये फूट गया, एग बाहर निकल गया। नहीं, अब ये इसमें ट्यूब में अब ये हाँ अब ये यहाँ पे ट्यूब ऐसे खड़ा हुआ है, ट्यूब इसको पकड़ने के लिए। हाँ, और ये ट्यूब में चला जाएगा और ये जो ये फॉलिकल था, दिस बिकम्स अ कॉर्पस लुटियम, या कुछ नहीं, छोटा सा चीज़ बन जाता है, नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल में हो रहा है। अब पीसीओडी में क्या होता है? पीसीओडी में ये पूरा बन जाता है, यहाँ तक बना, यहाँ तक बना, यहाँ तक भी बन गया। हाँ, लेकिन उसमें इसकी वॉल की थिकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये रप्चर ही नहीं हो पाता, फूट नहीं पाता। या जब ये फूट नहीं पाता है तो ये यहीं के यहीं रह जाता है। अब उधर जो यूट्रस है वो वेट कर रहा है बेबी के लिए, है ना। अब 28 डेज पे तक भी नहीं आया, 30 डेज भी नहीं आया, तो जब थोड़े दिनों बाद वो गिव अप कर देता है और फिर ब्लीडिंग हो जाती है। सो दैट इज़ वाई जो पीसीओडी वाली लड़कियां होती हैं उनको बहुत बहुत दिन में पीरियड्स आते हैं, क्योंकि वो रप्चर नहीं हुआ। यस, क्योंकि वो ये रप्चर नहीं हुआ और यूट्रस उसका इंतजार करता रह गया। कभी ना कभी ऐसा होता है कि अब द यूट्रस गिव्स अप, फिर उसकी लाइनिंग शेड हो जाती है। दिस कैन हैपन इन 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज, समटाइम्स इवन इन मंथ्स। एंड इससे क्या, एंड उसके बाद क्या होता है कि दीज गर्ल्स, इनके जो ये थिकेंड ये बचा रहता है ये सब, इसमें से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने लगता है, विच इज द मेल हार्मोन। एंड जितना मेल हार्मोन प्रोड्यूस होएगा उतना ज़्यादा उसकी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, बिकॉज द मोर मेल हार्मोन यू प्रोड्यूस द लेस फेमिनिन यू बिकम, है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन पीसीओडी। ओह रियली? यस। तो ये रप्चर ही नहीं होता है? हाँ, ये रप्चर ही नहीं होता है पीसीओडी में। तो एग्जैक्टली आपने बोला कि टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ। तो तभी फीमेल्स विद पीसीओएस और पीसीओडी हैव मोर हेयरी, या इसलिए अब क्या होता है, ऑल टुगेदर उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर वेरी हाई इन देयर बॉडी, है ना। एंड उसके वजह से मेल फीचर्स आने लगते हैं। अब मेल फीचर्स क्या होते हैं? बॉल्डिंग, है ना, इधर इधर से बाल गिरने लगते हैं, है ना। लड़कियां कहती हैं कि हम क्या खाएं, हमारे बाल गिर रहे हैं, हम ये शैम्पू यूज़ कर लें, हम वो कर लें, हम वो कर लें। उनसे कुछ नहीं होने वाला है ना। कोई चीज़ से भी नहीं कुछ होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ ऑल हार्मोन डिपेंडेंट। ठीक है। देन सिमिलरली जब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन रहेगा ना, तो ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स बन जाते हैं स्किन में, पिंपल्स आ जाते हैं। ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स रहेंगे, वो ब्लॉक होंगे और ज़्यादा पिंपल्स बन जाएंगे, तो उससे एक्ने की प्रॉब्लम आ गई। सिमिलरली जो हेयर है फेस पे वो थिकन हो जाता है, लाइक मेल हेयर ना, तो कहते हैं कि अब हेयर ज़्यादा हो गया फेस पे। तो दिस इज व्हाट इज चेंजिंग द होल थिंग। कैन आई टेक अ मोमेंट? बिकॉज मेरे को इतनी ब्यूटीफुली, एक तो ऑब्वियसली किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, दूसरा मैंने कोशिश भी नहीं की है जानने की, बट जैसे आपने सिंपली समझा दिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपने बॉडी के बारे में पहली बार इतनी डिटेल में कुछ पता लग रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। आई एम सो ग्लैड यू अंडरस्टूड। एंड अब एक चीज़ और बता दूँ इसके बारे में, वो है कि ये जो जितना भी ये एक्सेस ईस्ट्रोजन रहेगा जो बनेगा, ये सारे का सारा फैट सेल्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। सो ओबेसिटी, पिंपल्स, मेल हेयर हार्मोन्स, फॉल, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फैट सेल्स में इकट्ठी रहती हैं। तो अब क्या होता है, तो लॉजिक क्या कहता है, ना फैट सेल्स रहेंगी ना इतना ज़्यादा मेल हार्मोन रहेगा बॉडी में। तो इसलिए हम लोग क्या समझाते हैं, वेट रिडक्शन। सो देयरफॉर द एक्चुअल ओनली ट्रीटमेंट ऑफ पीसीओडी इज वेट रिडक्शन. It's a lifestyle disorder. It's a lifestyle disorder. And it's a lifestyle disorder like something like diabetes. You cannot cure it, but you can keep it under control. तो उस तरह से ही हम पीसीओडी को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। ये मतलब कितनी अच्छी चीज़ थी कि अगर आप बेसिक समझा दोगे कि आपको ये हो क्यों रहा है, तब आपको सब चीज़ समझ आ जाएगी। ना वो पिंपल्स आपके किसी क्रीम से जाने वाले हैं, ना आपकी बॉल्डिंग हेयर ऑयल लगाने से जाने वाली है। वही तो, एंड दैट इज़ वाई हमें क्या करना पड़ता है इन बच्चों को, जैसे अगर माइल्ड केसेस हैं तो केवल वेट रिडक्शन से ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि ज़िंदगी भर तो वेट रिडक्शन पे ही रहना है उन लोगों को ना। बट समटाइम्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि हार्मोन टैबलेट्स भी देने पड़ते हैं इनको, हमें पिल्स भी देने पड़ते हैं, जिससे इनका हार्मोनल मिल्यू जो है, जो हार्मोनल एनवायरनमेंट है इनके बॉडी के अंदर का, वो ठीक हो जाता है। एंड इफ़ यू
add weight control to that, तो सोने में सुहागा हो जाता है एंड सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. और फिर कहा जाता है कि अच्छा PCOS क्योर हो गया, हाँ. बिकॉज विद द हाँ. हेल्प ऑफ मेडिसिन्स एंड And लाइफस्टाइल weight reduction and चेंजेस. lifestyle changes, yes, ना, and आप ठीक हो जाता है. ब्यूटिफुल, So this is what PCOS is all about. वेरी वेल एक्सप्लेन्ड. सब लोग यही कहते हैं कि पहले भी तो लोगों को ये एडोलेसेंस होता था, पहले भी सब कुछ होता था, पहले PCOD क्यों नहीं होता था? क्योंकि आज से करीब 50-60 साल पहले ना इतना खाना ही नहीं था किसी के पास कि हाँ, ना चॉइसेस थे, हाँ, ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, है ना ही अवेलेबिलिटी ऑफ फूड था इतना. जोमेटो और ब्लिंकिट भी नहीं था. हाँ, है ना. सो देयरफॉर दीज थिंग्स जस्ट एड ऑन टू ओबेसिटी. एंड अगेन देयर इज नथिंग टू डू बिकॉज घर में मम्मी कर ही रही है, काम वाली है ही, एक ही बच्चा है, मम्मी ने सर पे चढ़ाया हुआ है ना. तो ऐसे भी कुछ नहीं. एक्चुअली लड़कियों की भी गलती नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए एडोलेसेंस एक फेज़ होता है ज़िंदगी में, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो, जिसमें नाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली ग्रो ना, एंड उनका मसल मैस इंक्रीज़ होना है. तो फिर बच्चों को ज़्यादा भूख लगेगी ना. अब सैड पार्ट इज़ ये कि जब पहले ज़माने में जब आपको भूख भी लगती थी तो आप उस खाने को अक्वायर करने के लिए मेहनत तो करते थे, है ना. आप जाते थे, फल तोड़ते थे, जानवर मारते थे, जो भी करते थे. अब आज तो आपको सब चीज़ कुक मिल रहा है घर में, है ना. जितना चाहिए उससे ज़्यादा घर में रखा हुआ है ना. तो इसलिए अब आप जितनी भूख लगती है उससे ज़्यादा खाते रहते हो. एक्सरसाइज बिल्कुल करते नहीं आजकल बच्चे, है ना. तो उसके वजह से फिर उनका वेट और बढ़ता चला जाता है. कैन आई से समथिंग? डेफिनेटली. इट्स बिन, मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे हर बार अलग अलग मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ बात करने को मिलता है. और इस अभी तक के पॉडकास्ट में हम इतने सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को फीचर कर चुके हैं. एंड हर बार इतनी सारी मेडिकल कॉन्वर्सेशंस करने के बाद इतना सब कुछ जानने को मिलता है, नॉलेज अपग्रेड होती है, फॉर विच आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. बट मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ का, हर डॉक्टर, हर एक मेडिकल प्रोफेशनल क्रक्स एक ही चीज़ कहता है, वो है लाइफस्टाइल. इट ऑल कम्स डाउन टू लाइफस्टाइल. वेदर आई स्पीक विद अ गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट और एन ऑर्थो और एन ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सब कहते हैं एवरीथिंग लिंक्स टू आपकी लाइफस्टाइल सॉर्टेड चल रही है तो आपके सारे ऑर्गन सॉर्टेड चलते हैं. एंड ये बात की रियलाइजेशन मुझे बार बार होती है जब एवरी टाइम आई सिट फॉर अ मेडिकल कॉन्वर्सेशन. आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. हाँ जी. मतलब हम लड़कियों को कहते तो रहते हैं कि उनका वज़न बढ़ रहा है, बट अगेन जो ये PCOS वाली लड़कियां होती हैं, इनको वेट लूज़ करना भी बहुत मुश्किल होता है इनके लिए. अच्छा. बिकॉज ऑफ द हार्मोनल लेवल्स ना, इनके लिए बहुत मुश्किल होता है वेट कम करना. प्लस PCOS में अक्सर ही थायराइड डिसऑर्डर्स भी मिल जाएंगे आपको. तो इन सब की से मिल करके जितनी देर में अगर एक नॉर्मल लड़की जिसको PCOS नहीं है ना, वो अगर थोड़ा सा डाइट कम करेगी और अगर तो उसका वेट मान लीजिए 1 किलो कम हो गया, तो ये PCOS वाली लड़की अगर अपना डाइट इतना कम करेगी तो इसका वेट आधा किलो भी नहीं कम होगा, या ज़्यादा देर में कम होगा. इसको ज़्यादा देर तक परसिस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके हार्मोन्स इसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, समझे. बट देन अब इस बात को लेके रोने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वेट मतलब PCOD तो उसी को अपना क्योर करवाना है ना. तो इफ़ शी वांट्स इट तो उसको डेफिनेटली फैटी फूड से दूर रहना चाहिए, है ना. एंड जितना हो सके वो मतलब हल्का खाना खाए, ज़्यादा फ्रूट बेस्ड खाना खाए, वेजिटेबल एंड फ्रूट बेस्ड खाना खाए, मतलब पेट भरा रहे उसका. क्योंकि ये अनदर थिंग विथ वेट वॉचर्स इज़ कि अगर आपको बहुत भूख लग रही है ना, जैसे लड़कियां कहती हैं ना, अब हम एक ही बार खाएंगे दिन में, तो जब बहुत भूख लग रही होती है तो आपका बॉडी ऑटोमेटिकली फैटी फूड्स को क्रेव करता है. ये फैक्ट है. ओके ना. तो देयरफॉर आपको मतलब हर मील खाना चाहिए ज़रूर, जिसमें कि नेक्स्ट मील के पहले आप इतने ज़्यादा भूखे ना हो जाएं कि उसके ऊपर टूट पड़े ना. तो ये ऐसी लड़कियों की मदर्स उनको हेल्प कर सकती हैं, मतलब जो भी उनके केयर गिवर्स हैं, बाय ऑलवेज कीपिंग लो कैलोरी फूड्स फॉर देम इन द हाउस, है ना. जैसे कि उनके लिए फ्रूट्स काट के रखें पहले से ही. देन अगेन खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें कैलोरीज कम होती हैं इनमें, बट दे आर वेरी फिलिंग, है ना. स्पेशली गाजर, मूली, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से भी खाई जा सकती हैं. आई थिंक आप बहुत सही कह रहे हो, बिकॉज ये कोट है कि डोंट गो ग्रॉसरी शॉपिंग वाइल यू आर हंग्री, क्योंकि यू विल ऑलवेज चूज द रॉन्ग फूड. एंड आई थिंक इट अप्लाइज टू लाइफ पार्टनर ऑल्सो.
Don't look for a man when you're lonely. You always choose the wrong one. Absolutely. Absolutely. Keeping the humor apart, I really want to come back to next phase of life. Okay. Yeah. So when a girl decides to get sexually active, क्या measures लेने चाहिए लड़कियों को? So, assuming the girl is an adult, I think what she has to to consider most is safe sex, Yes. because a sexual intercourse can lead to a lot of diseases if it is not done in a protected manner. Hmm. So, I think the girl should know what she's getting herself into. इतना unknown spectrum है ना, तो already there is lot of stigma and fear and hesitation attached. एक्चुअली ये peer pressure होता है ना. इट्स जनरली क्या होता है कि गर्ल्स आफ्टर दे रीच अ सर्टन एज, अ सर्टन टाइम, दे मे और मे नॉट वांट टू डू इट, बट औरों से peer प्रेशर बहुत रहता है, एंड दे फील दैट दिस फोमो वाला वर्ड जो आजकल आ रहा है ना, Fear of missing out. fear of missing out, कि everybody is doing it and I am not, so maybe I'll be called a बहनजी ना. So that's one thing जो इस रीज़न से तो नहीं करना चाहिए. Truth bombs. देन अगर कर ही रहे हो तो कम से कम ऐसे करो कि जिससे आपको नुकसान ना हो सके. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ इज़ कि नो द पर्सन जिसके साथ आप करने जा रहे हो ना, बिकॉज अनसेफ सेक्स कैन लीड टू सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ना, जिससे अभी तो कुछ नहीं लग रहा है आपको, बट इवेंचुअली ना यू कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक, मिनिमम प्रॉब्लम्स तो ये है कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई, लाइक आपको प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शंस हो गए ना. ये इन्फेक्शंस आगे बढ़े तो इवन बाद में ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं, आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है. ठीक है. एंड देन देयर इज दैट बिग एड ऑफ मतलब फियर ऑफ एड्स एंड STDs. ऑल काइंड्स ऑफ STDs. यस ना. तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए a person should use a condom, है ना. एंड कॉन्डोम्स जो होते हैं वो मेल्स के लिए भी होते हैं, फीमेल्स के लिए भी होते हैं. Okay. यस, बट यही है कि फीमेल कॉन्डोम इज़ नॉट एज सेफ एज द, इट इज़ सेफ बट इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू यूज़. सो आई थिंक and कि a person should, if you have chosen a partner, I think the partner should respect you enough to use a condom. That should be the bare minimum. यहाँ से बहुत सारे पोर्टल ऑफ क्वेश्चंस खुल जाते हैं. सबसे पहले जब मैंने ये सवाल सोचा कि मैं आपसे पूछूंगी तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में भी प्री मैरिटल सेक्स की बात आई. फिर ऑब्वियसली ऑन मोरल ग्राउंड्स हम अभी तक एज सोसाइटी यही एक्सेप्ट करते आए हैं कि sex should happen after marriage, after love, and once you are in the constitution of marriage. मगर हम इस बात से नज़र नहीं फेर सकते that this exists in the society very much. ठीक है. प्री मैरिटल सेक्स exist in the society और हम इसे जज नहीं कर रहे हैं ऑन मोरल ग्राउंड्स. ये एग्जिस्ट करता है, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि शी शुड नो वॉट शी हैज़ साइंड अप फॉर. उसको पता होना चाहिए कि वो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जो कि आपने एक्सप्लेन कर दिए. इवन इफ़ शी डिसाइड्स टू गो फर्दर, तो क्या मेजर्स लेने चाहिए. आपने कॉन्डम की बात करी कि वन शुड यूज़. अगर उसका पार्टनर डिनाई करता है कि कॉन्डम नहीं यूज़ करने चाहिए, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? नंबर 1. नंबर 2, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट यूज़ ऑफ पिल्स. Because there is a lot of misinformation when it comes to pills. मेरी फ्रेंड ले रही है तो मैं ले लेती हूँ. कौन सी लेनी है, कैसी टाइप की लेनी है, कब लेनी है, lot of questions when you move to the pill section. But अगर if somebody denies to use a condom, then what should be her next step? She should refuse. Yeah. She should refuse to be intimate with him. She should refuse sexual intercourse altogether. Because अभी वो इसकी इतनी सी बात नहीं मान रहा है, कल को कोई बात नहीं मानेगा, that's for sure. है ना. And it's very sad that if you profess to love someone, then आप उसका भला नहीं सोच रहे हैं. ना. She should have the guts to just refuse.
मतलब दैट इज़ माई टेक ऑन इट. Yes. बिकॉज देखिए, आप अगर पिल्स खाएंगे, अगर एक लड़की पिल्स लेती है, अग्रीड वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, हाँ, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस तो हो ही जाएंगे ना उसको. बिकॉज डेफिनेटली जो इतना ज़िद कर रहा है, हाउ डू यू नो कि उस जने के पास और पार्टनर्स नहीं हैं, है ना. तो इसलिए मेरे हिसाब से इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होनी ही नहीं चाहिए. देखिए, हम लोग तो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास अक्सर टीनेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स आती हैं, एंड दे से दैट दे वर नॉट एबल टू रिफ्यूज़ अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना. तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप उनसे बस यही कहते हैं कि कम से कम प्रेगनेंसी तो अवॉइड कर ही लो ना. तब हम पिल्स की बात आती है फिर वहाँ से. Is taking pills safe? नहीं, पिल्स देखिए, दीज आर हार्मोन प्रेपरेशंस. हार्मोन प्रेपरेशंस जो होते हैं, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स. Okay. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है उससे, लेग्स में क्लॉटिंग हो सकती है उससे, Okay. हाँ, उससे डायबिटीज़ बढ़ सकता है इन दोज पीपल हु आर प्रोन टू डायबिटीज़. क्योंकि यंग लड़कियों को क्या पता कि अभी हमें हमारे जीन है कि नहीं है हमारे में डायबिटीज़ की. देन दे कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कैंसर्स इवेंचुअली. Oh my God. सो देयरफॉर हमें मतलब ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, देखिए जनरली कुछ इनसे होता नहीं है ना, जब इफ़ दे आर यूज सेफली. बट अगर आपने स्टार्ट कर लिया दीज पिल्स व्हेन यू आर 17, 18, 19 और आप लेते ही चले गए है ना, क्योंकि ये तो पता नहीं है कि आप कब शादी करेंगे, है ना. तो आपको ये लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो हो ही सकते हैं ना. एंड वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कितना लॉन्ग टर्म इज़ लॉन्ग टर्म, Yes. है ना. तो इसलिए पिल्स को तभी यूज़ करना चाहिए व्हेन यू नो कि हम इतने दिन के लिए इसको यूज़ करने जा रहे हैं, एंड आई हैव नो अदर हेल्थ इश्यूज़ ना, तब यूज़ कर सकते हैं. तो जनरली मतलब आई डोंट थिंक पिल्स आर एनी सब्स्टिट्यूट फॉर कॉन्डोम्स. Very well said. I think that needs to be said on internet. ये एक ट्रस्टेड सोर्स से कहा जाना बहुत ज़रूरी था. यस, बिकॉज दोनों का पर्पस अलग है. आपने मूवी देखी है छतरी वाली? इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ वर्क ऑफ बॉलीवुड. बहुत अच्छा. इतने डीप रूटेड स्टिग्मा टॉपिक को उठाकर उन्होंने एक मूवी क्यूरेट की. My sister-in-law recommended this movie to me and I have shared. और वो इतने प्यारी तरीके से उन्होंने ये मैसेज दिया है टू द सोसाइटी दैट how to have safe sex, and it's very important for a woman to take charge. Yes, Yes. of their own lives. Yes. It's and ये कहाँ से आएगा? ये तभी आएगा when women feel enabled. Yes. है ना, कि तब जाके उनमें आएगा. अभी they feel so dependent, so they are willing to do anything. जिस जनरेशन को अभी हम इस क्वेश्चन के थ्रू केटर कर रहे हैं, वो जनरेशन इनेबल्ड है, एंड तभी ये इंटेंशन है बिहाइंड दिस पॉडकास्ट, टू इनेबल देम एंड टू इन्फॉर्म देम दैट यू शुड हैव द गट्स टू से नो. अब देखिए, दिस डिज़ायर फॉर सेक्स इज समथिंग विच इज़ इनबॉर्न, बिकॉज नेचर हैज़ क्रिएटेड मेल्स एंड फीमेल्स ओनली टू प्रोपगेट द ह्यूमन रेस. अगर अट्रैक्शन नहीं होगा तो कैसे प्रोपगेशन होगा? नहीं होगा, है ना. बट एंड एट वन टाइम I suppose when human beings were not living in a society, it was quite okay to do everything anyway, because I think the children जो born होते होंगे वो शायद herd का part होते होंगे, and everybody must be looking after all the like animals. अपने herd में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं सबका ध्यान रखते ही हैं. But now that we've decided to live as a society, then we have to abide by the rules of the society. अब एक civilized society के norms के अंदर आ गए. ये उसके मतलब ये हो गया कि अब जब आपके पास सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, एवरीथिंग इज माइन हो गया है ना, तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं नाउ, कि नाउ यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ, है ना, कि आप वेट करें, है ना, टिल यू आर एबल टू सपोर्ट योर सेल्फ, एंड देन यू गो अहेड एंड डू एवरीथिंग. यस. All right, ma'am, let's move on to the most awaited topic, biological clock versus career clock. I mean, जो मेरी एज की फीमेल्स हैं वो इस चीज़ से गुजर रही हैं. दैट इज़ वाई आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं एंड बोथ आर टिकिंग. व्हाट्स द सोल्यूशन? देखिए, द करियर क्लॉक आई थिंक कैन बी ऑल्टर्ड, द बायोलॉजिकल क्लॉक कैन नॉट,
there's no way in which you can do it. Now, biological clock में are you referring to getting married, or are you referring to having children? I think I abide by the society norms, so I'm going through that process only, getting married and then getting pregnant and then. So I mean, it doesn't matter if you get married, and even if you can pursue your career even if you're married. Yeah. Now, the problem which children, I mean, young girls of today are facing is that they don't want to have children because they are afraid that there'll be nobody to look after the children. Okay. है ना, इसी से तो डर रहे हो ना, या किस चीज़ से डर रहे हो? Have I not understood? खैर ये पर्सनल टेक नहीं, एक कलेक्टिव टेक है. मुझे Yeah, लगता है it's collective. Most girls are postponing childbearing. Yes. है ना, because they are rising in their careers. Yes. ये जो 30s and 40s का फेज होता है, between 30 and 40, इसमें ही तो सारे जंप्स होते हैं करियर में. Yes. है ना, तो आई थिंक मैं अलाउ मी टू स्पीक. ये जो पूरी जनरेशन में एज अ सोसाइटी चेंज आ रहा है, बोथ इन मेन एंड वुमेन, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिंक. डिंक मीन्स डबल इनकम, नो किड्स. या सो अब ये एक फ्रेज भी बन गया है क्योंकि कैजुअली यूज़ किया जा रहा है बिटवीन यंग प्रोफेशनल्स एंड इन 20s पीपल इन 30s. दे आर अडॉप्टिंग दिस साइकोलॉजी, दिस थिंकिंग कि हमें उसके टुवर्ड्स जाना है. उसकी वजह ये है फ्रीडम. बिकॉज योर करियर, योर पार्टनर, योर हॉबीज़, अब लोग ट्रैवल, इन सब चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं देन गोइंग टुवर्ड्स having a responsibility of a child. Also understanding कि बच्चा पल नहीं जाता है. ठीक है, पहले उसको पालना पड़ता है. जब पहले के ज़माने में हाँ ये कंडीशनिंग होती थी, अच्छा कर लो बच्चा पल जाएगा, क्योंकि जब जैसे पहले का पैटर्न था पेरेंटिंग का और अब जो पैटर्न है पेरेंटिंग का वो भी चेंज हो गया है क्योंकि हमारे आसपास चीज़ें चेंज हो गई हैं. तब पहले फ़ोन्स नहीं थे, जंक फूड नहीं थे, एजुकेशन सिस्टम चेंज हो गया है. अब हर चीज़ के लिए एक पेरेंट को, एक कपल को अपने आप को डिवोट करना पड़ेगा टूवर्ड्स पेरेंटिंग, तभी वो उसको जस्टिफाई कर पाएंगे. तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए, आपका बात सही है, डर जा रहे हैं, या फिर अ बेटर वे टू से इट कि वो अपनी फ्रीडम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, विच इज़ ओके. वी आर नॉट जजिंग पीपल हु आर डिंक और नॉट डिंक. ये कॉन्वर्सेशन किसी भी तरीके से जजमेंटल तरीके से नहीं करी जा रही. ये कॉन्वर्सेशन बस दो तर्क को बताई जा रही कि अगर एक जनरेशन, लार्जर पोर्शन ऑफ आवर जनरेशन इज़ डिंक, जो प्रेफर कर रहे हैं कि हम या तो बच्चे ना करें या फिर लेट करें, हम अपनी फ्रीडम, अपने करियर, अपनी लाइफस्टाइल को पहले एंजॉय कर लें और फिर एक बच्चा एक प्रोजेक्ट है फॉर नेक्स्ट 18 ईयर्स, फिर उस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लें. तो अगर वो ऐसा सोचते हैं और क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक टिकिंग है, तो इसका क्या सोल्यूशन है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि ये डिंक वाली चीज़ जो है ना, दिस इज़ ओनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. सो less than 80% of the population must be affected by it. Now, people still living in suburbs and villages and towns and even big cities. Now, most people do not subscribe to it at all. ठीक है. Now, most girls are still getting married in their 20s and most girls are still having children in their 20s. Okay. Now, it's very few people. Now, it must be the top maybe 1/3, maybe 1/5 of the people who are urbanized. Now, who choose to do this? So, but I mean, without moralizing at all a gynecologist can say is that there cannot be a reversing of your clock. Okay. So, children should be born at the correct age. Now, after the age of 38 years, now, in fact, after 37 years, now, in fact, 35 के बाद भी, the eggs slowly begin to diminish. As I told you, all the eggs which a girl has have been inside her from the time she was herself a fetus in her mother's womb. जब तुम अपनी मम्मी के यूट्रस में थी, तब तुम्हारी ओवरीज में जितने eggs थे उतने ही अभी भी हैं. अच्छा. So देखो, as you grow older, the eggs are also growing older. Yes.
ना. So after some times the eggs are no longer effective. ना, they cannot get fertilized. ना, so because of that, ना, आपके पास बाद में तो choices बचते नहीं ना. You can only use I mean if suppose you say कि हम तो IVF करा लेंगे, eggs किसके लोगे? Younger person के तो लोगे ना फिर. So then they will no longer be your own children. तो उससे अगर आप satisfied हो तो let the biological clock go on ticking. And what about egg freezing? Egg freezing has still not given very good results. I really want to ask you this. Considering that a couple is trying to conceive, और ये मुझे पता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं, ये मैंने वन ऑफ द डाउट्स मैं आपके साथ केटर कर रही हूँ. इफ़ अ कपल इज़ ट्राइंग टू कंसीव और वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने समय बाद उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? अब उन्हें कब पता चलेगा कि अब समय आ गया है आपके पास आने का? आफ्टर 1 year of 1 year of unprotected intercourse, जिसमें मतलब कुछ भी यूज़ ना करें, बर्थ कंट्रोल कोई भी मेथड ना यूज़ करें, तो आफ्टर अ ईयर ऑफ दैट दे शुड कॉन्टैक्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट. And why does it take a year to conceive? It takes. It's normal. It's normal. Yeah. Okay. It can take up to a year to conceive. Now we can come back to IVF. If you can explain in सरल भाषा. IVF देखिए in vitro माने शरीर के बाहर. ठीक है. एंड फर्टिलाइजेशन माने मतलब फर्टिलाइजेशन ना. तो उसमें नॉर्मली हमने आपको बताया ना कि ट्यूब्स में जब एग एंड स्पर्म मीट करते हैं तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है जी. अब किसी कारण से भी अगर मान लीजिए किसी लेडी के अंदर नहीं हो पा रहा है फर्टिलाइजेशन, तब इट इज़ IVF इज़ वन मेथड बाय विच आप प्रेगनेंसी करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड मेल के पास स्पर्म्स हैं, है ना, फीमेल का भी मोरलेस चीज़ें ठीक हैं, है ना, तब ये एक मेथड है जो आप कर सकते हैं. उसमें आप एक लेडी से एक एग लेंगे और मेल से उसका स्पर्म लेंगे और दोनों को मिक्स कर देंगे आउटसाइड द बॉडी एंड उनको आपस में छोड़ देंगे टिल यू विल सी कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई. कभी आप स्पर्म को डाल भी सकते हैं एग के अंदर, एंड सो दैट इज़ कॉल्ड अ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. और जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइज्ड एग को उस लेडी के यूट्रस में वापस डाल देंगे. ओके. एंड ऑल ऑफ दिस इज डन इन लैब. और ये प्रोसेस कैसा दिखता है, कितना लंबा होता है? इट टेक्स टाइम बिकॉज यू नो पहले बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं, है ना, फिर टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद एग बनाया जाता है जिसके लिए अगेन बहुत इंजेक्शंस लगते हैं, बहुत सारे होता है, फिर उसके बाद होता है 1-2 महीने लग ही जाते हैं. 2-3 महीने से 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं. द होल प्रोसेस. या एंड द होल कपल इज इन्वॉल्वड इन इट. या इज इट सेफ? या एंड देयर आर नो साइड इफेक्ट्स सीन? नहीं, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स ऑफ IVF. If you've gone to a good gynecologist, then they are not. Okay, what are the signs of good gynecologist? अपनी तारीफ कर दो थोड़ी सी. नहीं, I don't do IVF, you know that. I don't do that, but you should go to a good registered person. Nowadays, you need registration to do IVF. So you have to find out which center is registered and the gynecologist is registered. Then you go to her. Got that. आंचल, तुमने तो कहा था कि तुम कुछ मैजिक दिखाओगी. कुछ मैजिक तो दिखाओ. Should we switch to conversation? Okay. Yes, let's take a break. It's magic time. All right, it's magic time, everybody. So, Dr. Anita Jain, welcome on Hocus Pocus with Anchal. Thank you. Are you ready? Yes. Let's do something with it. Let's do something. All right. So, ma'am, I have this deck of cards with me. Okay. And this deck of cards is actually designed as per different medical terms like X-ray, gastroenterologist, radiologist, biopsy, and all the cards have different medical terms, right? Okay. So I'm not going to show you right now. What I'm going to do right now is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what I'm going to do is I'm going to give you these 10 cards. Okay. And I want you to shuffle these cards as much as you want. And once you're done shuffling, मैं चाहती हूँ आप 1 से लेके 10 तक कोई भी एक नंबर सोचें. Any one number between 1 to 10, preferably less than 10. Supposedly अगर आपने 2 सोचा है, so 1, 2. Take 2 cards out of these deck and place these cards on this deck as it is without disturbing the deck. Okay. Right? But while you do this entire thing, I'm not going to see this.
Okay, so for the reference of the audience, I want you to count it, but don't speak it out loud. Don't make any sound while counting it. Just for the reference of the audience, ताकि audience को पता लग जाए कि आप 2 नंबर के बारे में सोच रहे हो. तो आप कुछ बोलोगे नहीं, आप मुझे दिखाओगे नहीं, और आप कुछ gestures भी नहीं करोगे. Just आपकी counting से audience को पता लग जाएगा कितने नंबर के बारे में सोच रहे हो. Okay. Are you like? Am I clear? I understood. Yeah. Yeah. So take these cards. I'm going to turn around and shuffle it as much as you want. And once you're done shuffling, just think of one number inside your mind and pick as many cards as you have decided. And keep those cards that you have decided under your chair or under your pocket, because you're wearing a sari, you don't have a pocket. So keep those cards under your chair so that I don't see how many cards you have taken out, and place the rest of the cards on the deck. Have you done that? Yeah, I've done that. Can I turn around? Yes. All right. So there's no way in the world, Auntie, I can know that what is the number that you're thinking of. Exactly. Right? So what I'm going to do, ma'am, right now, I'm going to take these cards and I'm going to form a clock using these cards. I'll explain this to you in a while. So I'm going to spread these cards like this and frame a clock. All right, we're done with this. So what I've done right now, I have created a clock using these cards. So this is 12, this is 3, this is 6, this is 9. Very clear, right? Now before we proceed any further, what I'll do is I have this watch from the beginning of the act. Yes. What does the time say right now? It's 5 to 4. 5 to 4. It's visible in the camera? All right. So what I'm going to do is I'm going to set a time in this watch according to my prediction. And I'm not going to show this to you right now. Okay. All right. Let's do this. This is what I think it's going to be like. I'm not going to pin this in because obviously time change ho jayega. And I'm going to place this Upside down. Yeah. So we have this clock. This is 12, this is 3, this is 6, and this is 9. And now what I want you to do is whatever number that you have selected in your mind, I want you to count that number in your mind, right? Start counting that number from 1, because this is 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So starting from 1, you will start counting from here. Supposedly you have selected 3. So you will count 1, 2, and 3, and you will land on this card. So remember this card, which is 9 of diamonds, right? So in your mind, take your time and start counting that number that you have selected starting from 1. Okay. Once you're done, let me know. I'm done. You have done that? You have a card in your mind right now. Right. All right, ma'am. There's no way in the world I can ever know which card you're thinking of. Not right? There are so many cards in here, but यहाँ पे सिर्फ 2 color के cards हैं, which is red and black. So what we'll do is we'll try to trace the color of the card that you're thinking of. So I want you to think of, obviously we have 2 colors, red or black. Are you thinking? Yeah. Okay, look at me. This is what I think. I think you're thinking of a bright color card. Yes. And obviously black is not a bright color card, so you're thinking of a red card. Yes. You're thinking of a red card. Obviously we have so many red cards in here. We have 2 suits in red when it comes to hearts and diamonds. So I want you to think of the suit of your card. Either hearts or diamonds. Are you thinking? I thought. Okay. I think the suit that you're thinking, it's not... I think the suit that you're thinking somewhere signifies luxury. Yeah. I mean, hearts signify love, but diamond signifies luxury. So Right. you're thinking of a diamond I'm card. thinking of a diamond. All right. So we have so many diamond cards in here. There's I 6 want of you them. I want you to think of the value of your card right now. Clearly focus on the number of your card. I am.
what I'm feeling right now is that आप ना lower value card तो नहीं सोच रहे हो. It is somewhere below. It's not below 5. I think it's above 5. Yeah. Yeah. It's above 5. Yeah. Now we have 7 of diamonds, 8 of diamonds, and 9 of diamonds. Ma'am, I want you to look right into my eyes and think of your value. 7, 8, 9. 7, 8, 9. 7 and 9. क्या कर रहे हो? You're thinking of 7 of diamonds. Yes. All right. Wow. All right. You are thinking of 7 of diamonds. Yes. Remember at the beginning of the act, I told you I'm going to predict a time. And I've set a time in the watch. Would you mind taking the watch out and... It's 7. Yeah, can you please show it to the camera? देखिए. All right. Thank you so much. But not only That this. was really great. I'm glad you liked it. I did. But not only this. Let me take this to another level. All right. Are you ready? I told you at the beginning of the act that every deck of card has a special medical term written on it. Yes, you did. Yes? Let's see. Let's starting from 4. This has X-ray. This has ACL tear. This has incubators. This has UTI. This has physiotherapy, CPR, ventilators, biopsy, and endoscopy, hypertension, ophthalmologist, all different cards. Yes. You know, if you actually see it clearly, all these cards have different messages. And all these cards are actually red in color. Right? Would you believe me that if I say that the card that you have selected is not only different in color, but also has a special message for you? Really? Oops. It says gynecologist. And it's black in color. Only this card was different in color. Rest, all the cards are red in color and has different messages. Only the card. This is unbelievable. How did you do this? That's my dedication to you. Thank you. That was just too much. It's really great. That's why This was really good. I think it deserves another clap. Thank you. Thank you so much. Awesome. ऑल राइट दोस्तों, ये कॉन्वर्सेशन यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है, मगर ये कॉन्वर्सेशन लंबी होने के कारण हमने इस एपिसोड को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया है. हम अभी के लिए इस कॉन्वर्सेशन को यहाँ पूर्ण विराम दे रहे हैं. आई रियली होप दैट यू लाइक द इंटायर कॉन्वर्सेशन. और मुझे उम्मीद है कि इस कॉन्वर्सेशंस के थ्रू हम कुछ इनहिबिशंस, कुछ डाउट्स, कुछ स्टिग्मेटाइज टॉपिक्स को केटर कर पाए हों. आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग टू सेक्सुअल वेलनेस स्पेस ऑफ अ वुमन, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ इन रिगार्ड्स टू कंसल्टिंग विद डॉक्टर अनीता जैन. Also, thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal. We are very close to hitting 10K subscribers. Please subscribe to our channel because A, it is free and B, हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. We are trying to add value in your life through these wonderful conversations, entertain you through magic and motivate you through my Saturday videos. So please subscribe to our channel. And जाने से पहले मैं बता दूँ that this episode की एक्सटेंशन मतलब एपिसोड 2 विल कम बैक और वो होगा एक प्रेगनेंसी स्पेशल एपिसोड. सो स्टे ट्यून्ड.